Good morning, dear children. I'm going to provide you today the most important part of our mathematics chapter, that is GST. It is the first chapter. We have completed some of the chapters, I know, but I'm going to provide the first chapter as per your request, that is called GST, Goods and Service Tax. So it is the GST which is imposed in our country on 1st July 2017. So which introduction, that means GST, and which was having an aiming, which has an aim or the principle that one nation, one tax. Based on this principle, it has a plan after the 2015, that is the Modi government has got its priority in our country and majority in our country. They have launched it on the 1st July 2017. Before going to GST, before the GST we had sales tax and VAT and many other taxes we had. But now we have to learn what is tax and how many types of taxes are there and what is GST. Let us learn about it. Tax means it is the amount we pay to the government because of the public services we are getting from the government. That is called tax. Tax is of the two types. So one is direct tax and indirect tax, and third is called other taxes, which is also important for us. But direct tax and indirect tax, directly what you are paying to the government's account is called direct tax. Indirect tax you are paying to government only, but through some of the agents you are paying, so that is called indirect tax. Indirect tax के अंदर जाता है हमारा GST and also custom duty. Custom duty tax as well as GST is undergoing the part of indirect tax. Indirect tax what all goes? Direct tax में income tax, corporate tax, capital gain tax, prerequisite tax, ऐसा बहुत सारे. And what are the other taxes? Let me show you those all things so that you will understand better than that of listening to me. Here you can see, children, taxes of three types: direct tax, indirect tax and other taxes. Direct tax में income tax, capital gains, security transaction tax, prerequisite tax and corporate tax are there. Indirect tax में GST लिखा गया है, custom duty लिखा गया है, this two, and the last one is comes other tax, property tax, professional tax, entertainment tax, stamp duty tax, education, cess tax, entry tax, road tax or toll tax. There are so many taxes. You will be wondering, सर हम कस्टम ड्यूटी टैक्स का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है. इनकम टैक्स जानते हैं सर, जितना इनकम होता है उसके ऊपर जितना भी हमारा गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से जितना इनकम होता है उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना, टैक्स पूरा का पूरा इनकम के ऊपर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स. तो वही हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, बाकी टैक्स नहीं जानते सर, वो हमारा नहीं है यहाँ पे. दिस इज देयर इन द कॉमर्शियल मैथमेटिक्स. वी विल बी ओनली लर्निंग द फर्स्ट द टिक मार्क वन, दैट इज GST. सिर्फ हम लोग GST पढ़ेंगे आज. चलो पढ़ते हैं GST बच्चों. क्या है GST? इट्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which is levied or charged on the supply of the goods and services, that is on sale of goods, rendering services, with aiming one nation one tax, launched on the 1st July 2017. बच्चों जैसे हम बोल रहा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, वी आर पेइंग टू द पर्सन फ्रॉम हुम वी आर परचेजिंग द आर्टिकल. यदि आप लोग जाते हो ₹1 का एक चॉकलेट भी लेके आते हो तो भी वहाँ पे लिखा जाता है ₹1 विद इन द ब्रैकेट INCL डॉट ऑल टैक्सेस, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. एक चॉकलेट ₹1 का भी लगता है हमें टैक्स. यदि आप लोग का अपना अपना मतलब डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते रहते हो, जैसे कि कुरकुरे, लेस पॉकेट वगैरह ये सब चीज़ खाते रहते हो, या रबर खरीदते रहते हो, पेंसिल खरीदते रहते हो, पेन खरीदते रहते हो, हर जगह में लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, द MRP price, maximum retail price inclusive of all taxes is that much. So this is called one of the GST we pay. This GST is of two levels are there under it. One is central level, another one is state level. When you are purchasing things, what all those things are there which is going to directly going to central, the taxes are going directly to central, and what all taxes are going to the state level. Let us learn more. सेंट्रल लेवल में जो रहता है, दिस एक्साइज ड्यूटी. व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइज ड्यूटी टैक्स?
एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जब हम एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता रहता है कुछ भी चीज़, तो उसका प्रोडक्शन के लिए एंड उसे लाइसेंसिंग के लिए एंड उसे बेचने के लिए, जैसे सेलिंग के लिए, ये सभी चीज़ के लिए जो टैक्स लागू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उस कंपनी को और उस फैक्ट्री को, उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मीन्स व्हाट? Custom duty means suppose you are importing or exporting out of the state. That means importing means sending them, exporting means bringing it from other state, is called exporting. तो उसके लिए जो टैक्स लागू करते हैं उसी चीज़ के ऊपर उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स। सर्विस टैक्स, those are providing us the service, they are also paying some tax called service tax provider. Central sales tax is also there, which is due to the tax which is imposed of sale of every item. हर चीज़ बेचने के लिए जो इतना भी टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं लोगों से, वो टैक्स को भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, सेंट्रल सेल टैक्स। मतलब एक चीज़ हम लोग मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने वक्त इतने सारे टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर, इसलिए हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ टैक्स ही हो जाता है। यदि एक हम लोग गाड़ी के बारे में बात करें, एक छोटा सा बाइक के बारे में हम लोग बात करें, बाइक का मिनिमम यदि कॉस्ट 70,000 रुपीज़ है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही होगा 35, तो उसका डबल चार्ज के आसपास टैक्स ही आ जाता है। ये सभी टैक्स कुल मिला के उसका डबल के आसपास ही आ जाता है। स्टेट लेवल टैक्स कॉल्ड ऑक्ट्री टैक्स और एंट्री टैक्स। जब हम लोग ऑक्ट्री टैक्स मीन्स व्हाट बच्चों? ऑक्ट्री टैक्स मीन्स व्हेन यू आर bringing any things to your local area to sell those articles in your area, you also have to pay some tax to the state, not to the central, to the state you have to pay. That is called auxiliary tax. And what is called value added tax? When you are purchasing an item and how much, actually you are not purchasing the item to use by yourself, you are not a customer. This VAT is only for the shopkeeper and the retailer, those are purchasing the goods to sell to the customers. Then called next one is entertainment tax. LOT and LUX का मतलब है lottery and luxury tax are there also. This is the GST part. Let me make you understand more. GST rate structure in our local areas. This is essential, not a local but a whole of our India. Essential items including on-packed food items, उसके ऊपर 0% जैसे कि मिल्क हो या फिर वेजिटेबल्स हम लोग खरीदने जाते हैं उसके ऊपर GST नहीं रहता। कॉमन यूज आइटम्स दिखा जाएगा तो जैसे कि डेली बेसिस आइटम्स होते हैं कॉमन यूज आइटम्स, उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है, 5%, लेके 100 and you can see the कुरकुरे फूड आइटम्स, पैक्ड फूड आइटम्स, सम ऑफ द पैक्ड फूड आइटम्स के ऊपर 5% रहता है GST रेट। स्टैंडर्ड रेट, ऑलमोस्ट मैनी आर्टिकल्स आर बीइंग कैलकुलेटेड आउट ऑफ 12% ऑफ द GST। मैक्सिमम गुड्स आर 18% and all the luxury items that may be gold, that may be ashes, those all things 28% GST लगता है। and seen items in the sense tobacco वगैरह, cigarettes एंड अल्कोहल, ये सब चीज़ को 28% GST दिया जाता है टैक्सेस। सम टर्म्स रिलेटेड टू GST, जैसे कि बोला गया कि एक चीज़ जब मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करके आता है उसे डीलर डील करता रहता है कि कौन सा एरिया में कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कौन सा चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो उसके हिसाब से वो पहुंचाता है शॉपकीपर के पास और होलसेलर के पास। होलसेलर सेल्स टू the customer, otherwise retailer is also another medium. In the rural areas retailers are there and they come, they purchase in wholesales items from wholesaler shopkeeper, they go to their village and sell it in the loose quantity, that is called customers को बेचते हैं। बट हर चीज़ ऐसा ही नहीं होता, customers directly also purchase from the wholesaler. These all are the mediators we say to reach us to the customer. Next comes dealer. What is dealer? Person who buys goods or services for the reselling is known as the dealer. Then I want to tell you about some terms which is very important in the GST: intra-state and interstate. Intra means production and consumption in the same state. जब intra-state में consumption होगा तो GST वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यदि GST 18% है तो 9% चला जाएगा CGST को और 9% चला जाएगा SGST को। ये रहा हमारा GST 18%, 9% GST, 9% SGST बच्चों। इंटर स्टेट होगा तो सेल्स एंड गुड्स
सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द स्टेट, जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वहाँ पे एसजीएसटी नहीं रहता है इंटर स्टेट में, डायरेक्टली जितना भी 18% होगा जीएसटी तो वो सेंट्रल को ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी 18%, नो एसजीएसटी इन दिस प्लेस। देन कम्स इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी, जीएसटी पेड बाय एजेंट्स, जैसे डीलर या शॉपकीपर्स होते हैं, वो लोग जो पेमेंट करते हैं इनपुट जीएसटी बोलते हैं, वो लोग खरीद के लेके आते हैं। सो वन द परचेज ऑफ एवरी आइटम दे हैव टू पे टैक्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बैक इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। Next comes integrated goods and services tax called IGST. It is levied upon interstate sales, that is the sales of goods and services outside the state. It is also called levied on the import and export of the goods into and outside of our country. जैसे कि IGST goes to the central को हम लोग पेमेंट करते रहते हैं, एंड जहाँ पे सेंट्रल में ऑलरेडी एक बार पेमेंट किया जाता है उसे बार बार IGST दिया नहीं जाता। जैसे कि आप लोग का सेलिना बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे CGST पूछा गया एंड IGST भी पूछा गया है। यदि आप लोग वहाँ पे CGST लिखते हो तो IGST में 0 रुपीज़ लिखा जाएगा। सो ओनली वन टाइम यू हैव टू पे द टैक्स टू द सेंट्रल, बार बार नहीं देने का। एक एग्जाम्पल में लिखा हूँ यहाँ पे, यदि एक डीलर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से खरीद के सेल्स गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज़, एक डीलर है जो कि यूपी में रहता है, उसने क्या किया, ओडिशा का एक डीलर को बेचा, चीज़ भेजा, वो 18% उसका जीएसटी है। तो उसने क्या करेगा, सिंस यहाँ पे इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट आया तो यहाँ पे जो टैक्स है जो 9% होगा वो डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। एक आधा जाएगा टैक्स हमारा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा आधा जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। दैट इज़ द SGST विल बी सम अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपीज़ में 18% था तो 18,000 इज द टोटल टैक्स, 9,000 विल गो टू द टोटल 18,000 विल गो डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट है, एक स्टेट दूसरा स्टेट गया तो 18,000 रुपये पूरा का पूरा चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यदि वो इंट्रा होता है, इंट्रा स्टेट मीन्स 9/2% ऑफ 1 लाख, दैट इज 4,500 रुपीज़ जाता है सेंट्रल को और आधा 4,500 रुपीज़ जाता स्टेट को। ऐसे दिस टैक्सेस आर डन एक्चुअली to harmonize the tax administration between center and state, and also to it is very easy for the e-compliance mechanism, and so that it will be very transparent and regular and it can be looked after by the government. Some formulas are there बच्चों, selling price to find out selling price, mark price, कभी कोई mark price एक चीज़ लिखा जाता है आर्टिकल के ऊपर, वो लोग डिस्काउंट देके दूसरा प्राइस में हम बेचते हैं तो उसे बोलते हैं मार्क प्राइस इज द मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस और द बेसिक प्राइस कोटेड प्राइस ऑन द आर्टिकल। सो MP of 1 - D/100, सेलिंग प्राइस इज एन एग्जांपल ऑफ MP of 1 - D1/100 of 1 - D2/100। सेल प्राइस includes the GST, that is selling price of 1 plus GST %/100, and GST is equal to GST %/100 into SV वर्षित हो, और GST paid by the agent just like shopkeeper is equal to output tax minus input tax. Output tax is calculated upon the selling price, input tax is calculated upon the cost price. More examples, more solutions I will be solving and you can see those all things. First number for you children. It's the first number for the following transaction within the Delhi. Within the Delhi means intra-state, एक ही state के अंदर. Fill in the blanks, find the amount of the bill. MRP दिया गया 12,000 रुपीज़, डिस्काउंट 30% दिया गया है, GST 18% दिया गया। देखो उसका आंसर, डिस्काउंट कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट 30/100 इंटू 12,000 निकाल दो, 0 कैंसिल आउट, 120 इंटू 30, 3600 रुपीज़ द डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट से डिस्काउंट माइनस करने के बाद MRP से 12,000 माइनस 3,600, 8,400 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। CGST कितना होगा, CGST इज हाफ ऑफ द GST, दैट इज 18/2 बिकॉज इट्स इंट्रा। सो 9/100 इंटू 8,400, 756 रुपीज़। जितना CGST उतना ही SGST होगा, 756 अगेन। IGST यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि सेंट्रल ऑलरेडी जा रहा है। अमाउंट ऑफ बिल विल बी हाउ मच, MRP नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस में वो बेच रहा है दैट इज़ 8,400 रुपीज़ प्लस 756 प्लस 756 दैट इज़ 9,912 रुपीज़ ही हैज़ टू पे फॉर द बिल। फोर्थ नंबर आप लोग देख सकते हो, क्वांटिटी दिया गया है 24, 18, 24, 30, 12। MRP ऑन ईच प्राइस 152, 40, 100 एंड 120। डिस्काउंट परसेंटेज 10, 20, 30, 20। मैं यहाँ पे जो टेबल बनाया हूँ थोड़ा स्पेस कम की वजह से मैं ऐसे किया हूँ, आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा करना, यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल करके लिखिए होगा। देखो यहाँ पे 2700 कैसा है, 2700 18 इंटू 150 सभी के से मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 150 मीन्स 2700
माइनस डिस्काउंट निकालना है किसके ऊपर, 2700 के ऊपर। तो 10 बाई 100 इंटू 2700, 0 0 कैंसिल हुआ, 270 बचा। 2700 माइनस 270 इक्वल 2430 रुपीज़। सिमिलरली 24 क्वांटिटीज़ को हर एक क्वांटिटी का ईच आइटम का प्राइस है 240। तो कितना आएगा बच्चों, 24 जाइज 576, जीरो का जीरो रहा, माइनस 20% उससे माइनस कर दो, 5760 माइनस 1152 4608। सिमिलरली 30 इंटू 100 2100 रुपीज़ इसका आया है। सिमिलरली 12 क्वांटिटीज़ के लिए 1152 आया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका डिस्काउंट। टोटल पूरा को पूरा मिलाओ 10,290 रुपीज़। अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू मच 10,290 प्लस SGST plus GST. It is written that in the question the tax is 5% and it is intra-state. Intra means 2.5% टैक्स जाएगा सेंट्रल को एंड 2.5% टू द स्टेट। पूरा मिलाओ आपको लोग को मिलेगा 10,804.50 रुपीज़। सो आई हैव सॉल्व्ड 4 नंबर्स 1 2 3 4 के आसपास दे सॉल्व किया हूँ। बाकी का नंबर्स आई एम गिविंग टू यू टुडे टिल 10 sums. Write down the concepts are very very important children, so please do the task. Thank you.